In last video, we have solved the first 50 questions. So now question number 51. The rank of unit matrix of order n is. So it is asking for the rank of identity matrix. Unit matrix is nothing but identity matrix, and we know rank of identity matrix of order n by n is equal to n. So option number B is the right answer. Next question. The product of all the characteristic roots of a square matrix is equal to. We know that the product of all the eigenvalues is determinant of the matrix, so option number C is the right answer. And also we know that trace of any matrix, square matrix, is equal to sum of the eigenvalues. Okay. क्वेश्चन नंबर 53. द मैट्रिक्स ए सेटिस्फाई द इक्वेशन. हमें पता है कि कोई भी जो स्केयर मैट्रिक्स है वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी. सो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स एक्स प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस इस मैट्रिक्स का क्या है? 3 + 2 विच इज 5 प्लस डिटर्मिनेंट इज 3 × 6 minus -1, so it is 7. 7 is equal to 0. So this matrix satisfies its equation. So a square minus 5a plus 7i is equal to 0. So option number C is the right answer. Next question. The general solution of 1 minus tan 3x is equal to 0. From here tan 3x is equal to 1 and 1 is equal to tan of 45 tan pi by 4, and we know that tan theta is equal to tan alpha implies theta is equal to n pi plus alpha. From here 3x will be n pi plus pi by 4. So dividing both sides with 3, so x is equal to n pi divided by 3 plus pi divided by 12. So option number D is the right answer. Question number 55. The value of tan inverse 2 cosine of 2 sine inverse 1 by 2. So solving this expression, tan inverse 2 cosine of 2, value of sine 30 is equal to 1 by 2. So therefore this is pi divided by 6. 2 3 is 6. So tan inverse of 2 cosine of pi divided by 3. So tan inverse of 2, cos of 60 degree is 1 by 2. So 2 get cancelled with 2. So we are left with tan inverse of 1, and tan inverse 1 is pi by 4, 45 degree. So option number B. Next question. If cosine of x is equal to 3 over 5, then the value of tan x minus sine of x. Cosine of x is equal to 3 divided by 5, and we know cosine theta is equal to base upon hypotenuse. So if we draw a triangle, right angle triangle, base is equal to 3, hypotenuse is equal to 5, and perpendicular will be 4, because 3 4 5 is a Pythagorean triplet. From here, if this angle is x, tan x will be 4 divided by 3, sin x will be 4 divided by 5. So tan x minus sin x is equal to 4 divided by 3 minus 4 divided by 5. Taking LCM, 5 3 is 15, 5 4 is 20, 3 4 is 12, it is 8 over 15. So option number D is the answer. Next question 57. If tan inverse of 1 plus x plus tan inverse of x minus 1 is equal to tan inverse 8 divided by 31, then the value of x is. तो हमें यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है और वहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है. यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y विच इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाय 1 माइनस xy. Okay, so using this formula, left hand side of this expression becomes tan inverse 1 plus x minus 1 divided by 1 minus 1 plus x into x minus 1 is equal to tan inverse 8 divided by 31. So in left hand side 1 get cancelled with 1, and denominator here we can use identity of a plus b into
a minus b, which is equal to a square minus b square. Left hand side becomes 2x divided by 1 minus x square minus 1 square is equal to 8 divided by 31. So 2x divided by 1 minus x square plus 1 is equal to 8 divided by 31. So cancelling 2 with 8. So this is equal to x divided by 2 minus x square equal to 4 divided by 31. Cross multiplying. So 31x equal to 4 to 8 minus 4x square. So quadratic equation is 4x square plus 31x minus 8 is equal to 0. So product of root is equal to 8 4 ja 32. So using factorization, 4x square plus 31 32x minus x minus 8 is equal to 0. Taking 4 outside, 4x x plus 8 minus 1 x plus 8 is equal to 0. 4x minus 1 into x plus 8 is equal to 0. So values of x are 1 divided by 4 and minus 8. So correct option is option number B, 1 over 4. In a triangle ABC, if A is equal to 4, B is equal to 3 and angle A is equal to 60 degree, then C is the root of equation given below. Suppose एक triangle है आपके पास ABC, A के opposite side A हो जाएगी, A is equal to 4, B के opposite side B हो जाएगी, B is equal to 3, एंगल A किसके इक्वल है 60 डिग्री के इक्वल है और यहाँ पे हम कोसाइन फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. C के ऑपोजिट C साइड हो जाएगी, कोसाइन ऑफ A इज इक्वल टू बी स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस ए स्क्र डिवाइड बाय 2bc. तो इसमें वैल्यूज पुट कर रहे हैं. कोसाइन ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू बी स्क्र इज 3 स्क्र, सी स्क्र एज इट इज 4 स्क्र डिवाइड बाय 2 इंटू 3 इंटू सी. So cos 60 is 1 divided by 2, 3 square is 9 plus c square minus 16 divided by 3 to just 6 c. तो यहाँ से अगर आप इसे सॉल्व करेंगे 2 से 6 कैंसिल कर सकते हैं. तो यहाँ से आपके पास हो गया 3c is equal to 9 minus 16 is 7 c square minus 7. ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ जाएगी, c square minus 3c minus 7 is equal to 0. So correct option is option number A. If sine alpha plus beta is equal to 1 and sine alpha minus beta is equal to 1 over 2, then the value of tan alpha plus 2 beta into tan 2 alpha plus beta is equal to. So sine alpha plus beta is equal to 1 implies alpha plus beta is equal to 90 degree. Sine alpha minus beta is equal to 1 divided by 2 implies alpha minus beta is equal to 30 degree. Okay, adding these two equations, so 2 alpha will be 120 and alpha is equal to 60 degree. Subtracting these equations, so 2 beta is equal to 60 and beta is equal to 30 degree. So put these values in this expression. So tan of alpha is equal to 60 plus 2 times beta 60 into tan of 2 alpha means 60 into 2 120 plus beta is 30. So this angle is tan 120 into tan of 150. So this can be written as tan 90 plus 30 and this is tan of 90 plus 60. So tan 90 plus theta is minus cot theta and this is again minus of cot of 60. So negative into negative positive. Cot 30 is root 3 and cot 60 is 1 over root 3. So these two also get cancelled with each other. So value is 1. So correct option is option number A. So moving to the next question.
क्वेश्चन नंबर 60, द वैल्यू ऑफ साइन 55 माइनस कोसाइन ऑफ 55 डिवाइड बाय साइन ऑफ 10 डिग्री इज। तो यहाँ पे ना न्यूमिनेटर में साइन और कोसाइन का डिफरेंस गिवन है। हमें बताया कि साइन सी माइनस साइन डी के लिए फॉर्मूला है 2 कोसाइन ऑफ सी प्लस डी डिवाइड बाई 2 इंटू साइन ऑफ सी माइनस डी डिवाइड बाई 2। बट ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए आपको इस कोसाइन को साइन में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो हम कोसाइन ऑफ 55 को कैसे लिख सकते हैं? कोसाइन ऑफ 90 माइनस 35 लिख दें। ठीक है, और cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, सो दिस एक्सप्रेशन इज साइन 35 डिग्री। तो जो गिवन एक्सप्रेशन है इट विल बी साइन 55 माइनस साइन 35 डिवाइड बाय साइन 10 डिग्री। तो यहाँ पे ये आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, तो एक्सप्रेशन बिकम्स 2 कोसाइन ऑफ 55 प्लस 35 डिवाइड बाय 2 इंटू साइन ऑफ 55 माइनस 35 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय साइन ऑफ 10 डिग्री। तो 55 प्लस 35 क्या हो जाएगा? 5 प्लस 5 10, 8 प्लस 5 प्लस 3 8 प्लस 9 डिवाइड बाय 2, और यहाँ से 55 में 35 माइनस कर देंगे 20 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय साइन ऑफ 10 डिग्री। तो यहाँ से होगा 2 कोसाइन ऑफ 45 डिग्री इंटू साइन 10 डिग्री डिवाइड बाय साइन ऑफ 10 डिग्री। तो यहाँ साइन से साइन कैंसिल हो गया, आपके पास आया 2 कोसाइन ऑफ 45। कोसाइन ऑफ 45 इज 1 ओवर रूट 2, सो दिस एक्सप्रेशन इज रूट 2। तो यहाँ से ऑप्शन आ जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी। Question number 61, if A and B are two finite sets, then the total number of function from A to B. So total number of function from A to B are equal to cardinality of B raised to the power cardinality of A. So option number A is the right answer. So next question, which one of the following is false? Every set equivalent to finite set is finite. Equivalent का मीनिंग क्या है कि दो सेट्स हैं अगर आपके पास, तो उनमें जो फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है? 1 1 ओम टू फंक्शन है। ठीक है, और एक सेट अगर फाइनाइट है, सपोज कर लो आपके पास बी सेट फाइनाइट सेट है, और फाइनाइट सेट अगर इक्विवेलेंट है किसी सेट से, तो वो भी सेट क्या हो जाएगा आपके पास? फाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए तो ट्रू है। एवरी काउंटेबल सेट इज इक्विवेलेंट टू सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये भी ट्रू है, क्योंकि काउंटेबल सेट्स कौन से सेट्स हैं? तो या तो नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंट हो या फिर उनके सबसेट्स के इक्विवेलेंट हो। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन ट्रू है। द सेट ऑफ ऑल द इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए अनकाउंटेबल सेट इज ऑलवेज अनकाउंटेबल। ठीक है, ये देख लेते हैं एक मिनट। फोर्थ ऑप्शन क्या है कि द सेट ऑफ रियल नंबर इज अनकाउंटेबल, ये भी ट्रू है, क्योंकि रियल नंबर्स की जो कार्डिनलिटी है वो कंटिन्यूम है, इस वजह से रियल क्या है? अनकाउंटेबल है। सो ऑप्शन नंबर सी फॉल्स हो जाएगा। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। So next question, let fx is equal to e raised to power x and gx is equal to log x, then which one of the following is true? तो ये बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। फर्स्ट ऑप्शन है f 1 over x, तो यहाँ से एक्सप्रेशन आएगा e raised to power 1 over x। इस एक्सप्रेशन की डोमेन रियल माइनस 0 है, ये ट्रू है क्योंकि आप x की वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं पुट कर सकते, 0 पुट करेंगे एक्सप्रेशन अनडिफाइन हो जाएगा, इस वजह से ये डोमेन तो ठीक गिवन है। रेंज रियल माइनस 1 के इक्वल है। क्या इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 ओवर एक्स की वैल्यू जो है 1 के इक्वल आ सकती है? नहीं आ सकती ना, क्योंकि e रेस्ट टू पावर 0 ही 1 आएगा, और जो 1 ओवर एक्स है उसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं आ सकती। ठीक है, देयरफॉर रेंज भी इसकी ठीक गिवन है, सो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन आप डिस्कार्ड कर सकते हैं, जैसे एफ एक्स एज ए डोमेन रियल नंबर, ये नहीं है क्योंकि इसमें डोमेन क्या आएगी? रियल माइनस 0 आएगी। सो ऑप्शन नंबर सी, एफ एक्स एंड जी एक्स आर नॉट इनवर्स ऑफ ईच अदर, बट ये दोनों फंक्शन तो इनवर्स हैं एक दूसरे के। ई रेज टू पावर लॉग ऑफ एक्स करोगे आप तो एक्स आ जाएगा, लॉग ऑफ ई रेज टू पावर एक्स फाइंड करोगे तो वैल्यू एक्स आ जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों फंक्शन तो इनवर्स ऑफ ईच अदर हैं, सो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। लास्ट ऑप्शन है जी एक्स हैज ए डोमेन रियल एंड रेंज
आर पॉजिटिव। जी एक्स जो फंक्शन है, लॉग ऑफ एक्स फंक्शन है, जो हमें पता है इस फंक्शन का ग्राफ कैसे है, इस तरह से ग्राफ है। इस फंक्शन की डोमेन 0, इन्फिनिटी है और रेंज क्या है इसकी, और रियल नंबर्स हैं, ठीक है। इस वजह से ये ऑप्शन भी गलत है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 64, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए विच इज इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा सी। क्या बताना है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितने पॉसिबल हैं इस सेट में, ठीक है। सेट का गिवन है ए कॉमा बी कॉमा सी, और हमें बताया इक्विवेलेंस रिलेशन कैसा रिलेशन है, जो क्या हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो एंड ट्रांजिटिव भी हो, ठीक है। रिफ्लेक्सिव मीन्स आपके पास एक्स कॉमा एक्स टाइप के सभी पेयर रिलेशन में होने चाहिए। फॉर सिमेट्रिक, इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, then this implies yx also belongs to R. For transitive, if xy belongs to R, yz belongs to R, then this should implies x, z also belongs to R. तो ये तीनों कंडीशनें हमें सेटिस्फाई करवानी है किसी भी रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन बनाने के लिए। तो स्टार्ट कर रहे हैं। सपोज करो मैंने एक रिलेशन लिखा R1, तो इस रिलेशन में ए बी बी एंड सी तो होने ही चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट आ सकते हैं। अगर मैं इस रिलेशन को यहीं पे क्लोज कर दूं तो क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा, तो सभी कंडीशनें ट्रिवियली सेटिस्फाई हो जाएंगी, क्योंकि सिमेट्री के लिए आपके पास एक्स वाई वाई एक्स वो सेम एलिमेंट ही बन जाएंगे, ठीक है। और ट्रांजिटिव के लिए भी ये कंडीशनें सेटिस्फाई रहेंगी। R2 लिख रहे हैं, सपोज मैंने ये एलिमेंट तो एज इट इज लिखे हैं, इनमें कुछ और एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ एलिमेंट्स। जैसे सपोज मैंने ए भी इंक्लूड किया, तो मुझे ए भी इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है, फॉर सिमेट्री। अगर हम यहीं पे क्लोज कर दें इस रिलेशन को, तो ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा, कि ट्रांजिटिविटी के लिए क्या कंडीशन बन जाएगी, ए बी बी ए, सो ए बिलोंग्स टू आर, वो ऑलरेडी आपके पास रिलेशन में मिलेगा, ठीक है। सिमिलरली हम R3 लिख सकते हैं। इस केस में हम क्या इंक्लूड कर दें, बी सी इंक्लूड कर दें, तो वहां से आपके पास सी बी इंक्लूड हो जाएगा। सिमेट्री के लिए ट्रांजिटिविटी सेटिस्फाई रहेगी। R4 कैसे कर सकते हैं, ये आपके पास सेम कोऑर्डिनेट वाले पेयर रहेंगे ही, तो मैं क्या करूं, ए सी इंक्लूड कर दूं, तो वहां से सी ए इंक्लूड कर दूं। अब एक रिलेशन और लिख सकते हैं, कोई और एलिमेंट ऐड करना चाहें अगर, सपोज करो ए बी मेरे पास ऑलरेडी है, बी ए है, मैं कोई एलिमेंट और ऐड करता हूँ, सपोज करो मैंने बी सी इंक्लूड कर दिया, ठीक है। बट फॉर ट्रांजिटिविटी अगर मेरे पास ए बी है बी सी है, तो मेरे पास ए सी भी होना चाहिए। तो अगर ए सी आ गया आपके पास, तो सिमेट्री के लिए आपके पास सी ए भी चाहिए। सिमिलरली बी सी था तो सी बी भी चाहिए। तो ये तो सारे के सारे एलिमेंट इंक्लूड हो गए रिलेशन के। तो आपके पास यहीं तक ही रिलेशन पॉसिबल है। कितने रिलेशन पॉसिबल हैं, 5 रिलेशंस। तो मैक्सिमम कितने रिलेशन पॉसिबल हैं, 5। क्वेश्चन नंबर 65, इफ a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 देन द डोमेन ऑफ द रिलेशन, इस रिलेशन की हमें डोमेन बतानी है। देखो y कैसे डिफाइन किया हुआ है, 2x - 1, ठीक है। अगर मैं रिलेशन के एलिमेंट लिखना चाहूँ, तो फर्स्ट मैं अगर x की वैल्यू 1 लिखूंगा तो y की वैल्यू आएगी 1। अगर मैं x की वैल्यू 2 लिखूंगा तो y की वैल्यू आएगी 2 2 4 -1 3 आ जाएगी। अगर मैं 3 लिखूंगा तो फिर वैल्यू क्या आएगी, 3 2 6 -1 5। अगर मैं 4 लिखूंगा तो वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 4 2 8 -1 7। बट जो एलिमेंट्स हैं सेट के वो क्या हैं, 5 तक ही हैं, तो ये एलिमेंट आप इंक्लूड नहीं कर सकते। तो रिलेशन आपका यहीं तक हो जाएगा, ठीक है। इस रिलेशन में जो x कोऑर्डिनेट है वो आपके पास डोमेन के एलिमेंट्स हैं, तो डोमेन ऑफ द रिलेशन इज 1 2 एंड 3। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। So next question, question number 66. If A is 1 2 3 4 and R is a relation on set A is defined by A comma B where B is a even number, ठीक है। और हमें रिलेशन की रेंज फाइंड करनी है। रेंज बेसिकली y कोऑर्डिनेट्स हैं इस रिलेशन के, तो y कोऑर्डिनेट्स के लिए क्या कंडीशन है, B में क्या कंडीशन है, इवन नंबर्स होने चाहिए। तो रेंज आपके पास B की पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी। सो B कैन बी 2 और 4 फ्रॉम दिस सेट। So therefore range of the relation is 2, 4. So option number B is the correct answer. So next question, the point of intersection of planes is, तो इन तीनों planes को हमें solve करना है और वहां से x y z की वैल्यू फाइंड करनी है।
फर्स्ट प्लेन है x प्लस 2y प्लस 3z माइनस प्लस 1 इक्वल टू 0। सेकेंड प्लेन है x माइनस वाई प्लस z माइनस 1 इक्वल टू 0। थर्ड प्लेन क्या है y प्लस z इक्वल टू 0। अगर मैं इन दोनों प्लेन्स को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो वहां से x कैंसिल हो जाएगा और इक्वेशन क्या आ जाएगी, y और z में आ जाएगी। फिर इस इक्वेशन से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों प्लेन्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, x से x कैंसिल हो गया, 2y प्लस वाई इज 3y, 3z माइनस z इज 2z एंड 1 प्लस 1 इज 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y z की वैल्यू किसके इक्वल है, माइनस वाई की इक्वल है। इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, सो इक्वेशन बिकम्स 3y माइनस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0, y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू माइनस 2। सो ऑप्शन देख लें कि जिसमें y की वैल्यू माइनस 2 हो, यहाँ पे है, यहाँ पे है, चेक करना पड़ेगा, ठीक है। y की वैल्यू माइनस 2 है, z की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस 2, ठीक है। सो पुटिंग दिस वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सो x प्लस 2 टाइम्स माइनस 2, 3 टाइम्स 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। सो x माइनस 4 प्लस 6 प्लस 1 इक्वल टू 0। सो x प्लस 3 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू माइनस 3। सो आपके पास ऑप्शन सी आ जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। तो आपके पास दो लाइंस गिवन है वेक्टर फॉर्म में, तो उनमें से हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए क्या फॉर्मूला है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू a2 माइनस a1 डॉट प्रोडक्ट विद v1 क्रॉस b2 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2 एब्सोल्यूट साइन। सबसे पहले जो लाइंस हैं उनके लिए हम a1 b1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसे फर्स्ट इक्वेशन गिवन है r, तो इसमें जो यहाँ पे जो वेक्टर है वो a1 के इक्वल है, यहाँ पे जो वेक्टर है वो b1 के इक्वल है, ठीक है। तो a1 इज इक्वल टू 1,1,0 और b1 की वैल्यू आएगी आपके पास 2,-1,1, ठीक है। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन में a2 आपके पास आएगा 2,1,-1 एंड b2 इज इक्वल टू 3,-5, 2, ठीक है। तो इनसे हम सबसे पहले फाइंड कर रहे हैं a2 माइनस a1। तो 2 माइनस 1 इज 1, 1 माइनस 1 0, माइनस 1 0 इज माइनस 1, ठीक है। b1 क्रॉस b2 फाइंड करेंगे, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट i कैप j कैप k कैप, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 5 2। तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, i कैप माइनस 2 प्लस 5 माइनस j कैप, सो 2 2 जा 4 माइनस 3 प्लस k कैप, सो 5 2 जा 10 माइनस 10 प्लस 3। तो इसे सिंप्लीफाई कर लें तो 5 माइनस 2 इज 3 i कैप, 4 माइनस 3 इज 1 माइनस j कैप, 10 माइनस 3 इज 7 नेगेटिव 7 k कैप। तो आपके पास आ गया b1 क्रॉस b2। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी चाहिए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर स्क्वायर रूट। सो 9 प्लस 1 प्लस 49, 49 प्लस 1 50, 59। सो इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 59। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपके पास, एस डी इज इक्वल टू a2 माइनस a1 विच इज 1 0 माइनस 1 डॉट प्रोडक्ट विद b1 क्रॉस b2। b1 क्रॉस b2 क्या आएगा, 3 माइनस 1 एंड माइनस 7 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 59। इसे सॉल्व कर लेंगे, सो 3 1 जा 3 प्लस 0 प्लस 7 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 59। सो इट विल बी 10 ओवर रूट 59। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। Okay, next question, a vector of magnitude 5 in the direction opposite to the direction of this vector। तो क्या करना है, एक वेक्टर फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट हो बट इस वेक्टर की डायरेक्शन से वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, ठीक है। सबसे पहले ना हम उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 बनाएंगे। कैसे, पहले इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप 1 बना लो, यानी कि यूनिट वेक्टर फाइंड कर लें, फिर उसे 5 से मल्टीप्लाई कर दें, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 हो जाएगा। नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करोगे डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी, ठीक है। तो आइडिया क्या है कि सबसे पहले आप इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करें,
ठीक है, सो इट विल बी 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9, 6 स्क्वायर इज 36, so 4 plus 36 is 40, so it is 49, so square root 49 is 7. ठीक है, सो यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा आपके पास, 2i कैप माइनस 3j कैप 6k कैप डिवाइड बाय 7. इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें क्या बनाना, 5, तो इसे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बट इस वेक्टर की डायरेक्शन क्या रखनी है आपने, ऑपोजिट, तो इसे हम नेगेटिव से भी मल्टीप्लाई करेंगे. सो ये अपना रिक्वायर्ड वेक्टर हो जाएगा. ठीक है, इसे सॉल्व कर लेंगे. 5 2 या 10 माइनस 10 ओवर 7 आई कैप, 5 3 जा 15, 15 डिवाइड बाय 7 जे कैप, 5 6 या 30, 30 डिवाइड बाय 7 के कैप. ये देख लो किस ऑप्शन में है. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70. द पॉइंट ऑन द सरफेस z स्क्वायर इज इक्वल टू xy प्लस 1 नियरेस्ट टू द ओरिजिन. तो क्या करना है आपने, ये आपके पास कोई कर्व है, इस पे कोई पॉइंट है x y z, वो फाइंड करना है जो ओरिजिन से मिनिमम डिस्टेंस पे हो, यानी कि 0 0 0 से उसका डिस्टेंस मिनिमम हो. सबसे पहले हम डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे. डिस्टेंस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 0 स्क्वायर, y माइनस 0 स्क्वायर, z माइनस 0 स्क्वायर. सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. क्या करना है, इस डिस्टेंस को मिनिमाइज करना आपने, मिनिमम डिस्टेंस. ठीक है ना, तो इसे हम एक फंक्शन मान लेते हैं, स्केयरिंग करके u मान लेते हैं डी स्क्वायर के इक्वल है. सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. अब टास्क क्या रहेगी कि हमें u को मिनिमाइज करना है. ओके, तो आपके पास जो कंडीशन गिवन है z एक्स वाई प्लस 1 वो पुट कर दें, तो जो फंक्शन है वो एक्स वाई में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1. अब ये प्रॉब्लम कन्वर्ट हो गई है मैक्सिमा और मिनिमा फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स में. ठीक है, सबसे पहले हम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे बाय करली यू डिवाइड बाय करली एक्स फाइंड करें, एंड करली यू डिवाइड बाय करली वाई फाइंड करें, उन दोनों को इक्वेट टू 0 कर देंगे. ठीक है, वहां से आपके पास क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे, वहां पे हम चेक करेंगे मैक्सिमा और मिनिमा. ओके, सो करली यू डिवाइड बाय करली एक्स 2x प्लस वाई एंड करली यू डिवाइड बाय करली वाई, ये आपके पास आ गया 2y प्लस एक्स. इन दोनों को इक्वेट टू 0 करोगे आप. सो इन दोनों इक्वेशन से सेटिस्फाई होने वाले जो वैल्यूज हैं x और y की, वो क्या हो जाएंगी 0,0. ठीक है, अगर x और y की वैल्यू 0 है, वो पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, इस कर्व पे लाई कर रहा है, तो वहां से z स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 के इक्वल आ जाएगी, तो z विल बी प्लस माइनस 1. तो क्रिटिकल पॉइंट्स आपके पास आए हैं, वो आए हैं 0 0 प्लस माइनस 1. ठीक है, अब हमें आगे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑप्शन में है पॉइंट, बाकी कोई भी पॉइंट जो है वो अपना क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, तो इस वजह से करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए. So question number 71, let P and Q are two unit vectors. If vector R and S are perpendicular to each other, then the angle between P and Q is equal. तो हमें क्या गिवन है, R और S दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल आएगा. ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं. P वेक्टर टू Q वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद 5P वेक्टर माइनस 4Q वेक्टर इज इक्वल टू 0. डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं 5P वेक्टर डॉट P वेक्टर माइनस 4P वेक्टर डॉट Q वेक्टर, 5 इंटू 2 10 Q वेक्टर डॉट P वेक्टर माइनस 8 Q वेक्टर डॉट Q वेक्टर. सो 5 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ P वेक्टर स्क्वायर. अब P वेक्टर डॉट Q वेक्टर इज इक्वल टू Q वेक्टर डॉट P वेक्टर है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है, देयरफॉर 6P वेक्टर डॉट Q वेक्टर माइनस 8 मैग्नीट्यूड ऑफ Q वेक्टर स्क्वायर इज इक्वल टू 0. और P और Q दोनों यूनिट वेक्टर हैं, सो देयरफॉर 5 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 6 मैग्नीट्यूड ऑफ P वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ Q वेक्टर कॉज ऑफ थीटा. हमने डॉट प्रोडक्ट को एक्सपेंड कर दिया, माइनस 8 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0. इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर रहे हैं, 5 प्लस 6 इंटू 1 कॉस थीटा माइनस 8 इज इक्वल टू 0. सो 5 माइनस 8 इज माइनस 3 प्लस 6 टाइम्स कॉस थीटा
इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 3 डिवाइड बाई 6 विच मीन्स 1/2. So cos theta is equal to 1/2 means theta is equal to 60 degree and 60 degree is pi divided by 3. So option number C is the correct answer. Next question, if vector P and Q and R are mutually orthogonal then the value of lambda and mu is equal to 0. तो हमें एक कंडीशन गिवन है कि तीनों वेक्टर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल है, तो वहां से लैम्डा और म्यू की वैल्यू फाइंड करनी है. लैम्डा और म्यू किस वेक्टर में है, आर वेक्टर में गिवन है लैम्डा एंड म्यू. तो हम क्या करेंगे, पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर इक्वल टू 0 कर देंगे, क्यू वेक्टर डॉट आर वेक्टर इक्वल टू 0 कर देंगे, बिकॉज दीज थ्री आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल विच मीन्स डॉट प्रोडक्ट इज 0. तो यहाँ से इसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो आपके पास पी डॉट आर करेंगे जब, तो आपके पास क्या आएगा, डॉट प्रोडक्ट लैम्डा -1 प्लस 2 म्यू इज इक्वल टू 0. सिमिलरली क्यू डॉट आर कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आएगा 2 लैम्डा प्लस 4 प्लस म्यू इज इक्वल टू 0. तो इस इक्वेशन से आपके पास लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई 1 माइनस 2 म्यू, और इसे सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं 2 टाइम्स 1 माइनस 2 म्यू प्लस 4 प्लस म्यू इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से सॉल्व करेंगे 2 माइनस 4 म्यू प्लस 4 प्लस म्यू इज इक्वल टू 0. तो 4 प्लस 2 इज 6 माइनस 3 म्यू इज इक्वल टू 0. तो म्यू की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 2, म्यू की वैल्यू 2 आ गई. इससे हम लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे 1 माइनस 2 इंटू 2. सो लैम्डा इज इक्वल टू 1 माइनस 4 विच इज -3. लैम्डा 3 और म्यू 2 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए. क्वेश्चन नंबर 73, इफ द स्ट्रेट लाइंस, दो स्ट्रेट लाइंस गिवन है और किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करनी है और वहां से हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है. ओके, तो यहाँ पे कंसेप्ट यूज कर रहे हैं. देखो अगर कोई दो स्ट्रेट लाइंस हैं, सपोज करो इसे हम L1 कह देते हैं, इसे L2 कह देते हैं. ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं किसी एक पॉइंट पे, ठीक है. ये L1 हो गया, ये L2 हो गया. L1 लाइन पे एक पॉइंट है विच इज 1, 2 एंड 3. तो L1 लाइन पे एक पॉइंट है विच इज 1, 2, 3. सिमिलरली L2 लाइन पे पॉइंट कौन सा है 2, 3 एंड 1. तो आपके पास L2 लाइन पे पॉइंट हो गया 2, 3 एंड 1. अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन होने वाली लाइन फाइंड करें तो वो लाइन इन्हीं दो लाइंस के प्लेन में लाई करेगी, यानी कि ये तीनों लाइंस एक ही प्लेन में लाई करेंगी. इमेजिन करके देखो, दो लाइंस हैं, उन पे दो पॉइंट्स हैं, उन्हें ज्वाइन करेंगे, वो लाइन भी उन्हीं दोनों लाइंस के प्लेन में लाई करेगी, ठीक है. तो ये तीनों लाइंस कैसी होगी, कोप्लेनर लाइंस होगी. तो कोप्लेनर अगर आपके पास लाइंस हैं तो उनके लिए क्या कंडीशन है कि उनके डायरेक्शन कोसाइंस का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 होएगा, ठीक है. तो हम क्या फाइंड करेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस. फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, K2 3, 3K2. सेकंड लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस हो गए. थर्ड लाइन के हम फाइंड कर सकते हैं, तो कैसे फाइंड करेंगे, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1, 1 माइनस 3 -2. तो इसे लिख देंगे 1 1 -2. ये इक्वल टू 0 होना चाहिए. वहां से आप क्या करोगे, इसे सॉल्व कर लेंगे और के की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. के तो -2K -2 इसे सॉल्व करें तो आपके पास आएगा -6 -2 प्लस 3 माइनस के इक्वल टू 0. इसे सॉल्व कर लेते हैं. -2K स्क्वायर -2K -6 -2 -8 टाइम्स -2 इज +16. 3 3 जा 9 -3K इक्वल टू 0. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है के में 2K स्क्वायर -5K प्लस 25 इज इक्वल टू 0. तो इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2K स्क्वायर प्लस 5K माइनस 25 इज इक्वल टू 0. 25 2 जा 50, 50 चाहिए दो नंबर्स का प्रोडक्ट, और सम क्या चाहिए 5. तो 2K स्क्वायर प्लस 10K माइनस 5K माइनस 25 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से अगर आप 2K कॉमन लेंगे तो K प्लस 5 माइनस 5 कॉमन लें, K प्लस 5 इज इक्वल टू 0. तो फैक्टर्स क्या आ गए 2K माइनस 5 एंड K प्लस 5 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से K की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/2 एंड
-5, सो ऑप्शन देख लें, ऑप्शन में -5 है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 74, the distance of the point 1, -5 और 9 from the plane measure along the straight line x equal to y equal to z is, एक पॉइंट गिवन है और एक प्लेन गिवन है, इन दोनों में डिस्टेंस फाइंड करना है, बट वो डिस्टेंस इस स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग हो, ठीक है, इस स्ट्रेट लाइन के अलोंग हो। देखो ग्राफिकली कैसे देखेंगे, ये प्लेन हो गया, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5, सपोज करो ये पॉइंट है 1, -5 और 9, हमें डिस्टेंस फाइंड करना प्लेन और पॉइंट्स में, बट वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं फाइंड करना जो आप फॉर्मूला लगा के फाइंड करते हो, इस स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग हमें वो फाइंड करना है। सपोज करो इस लाइन की जो इक्वेशन है वो इस तरह से है, x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, तो हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है जो इस लाइन के पैरेलल लाइन के अकॉर्डिंग आए, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे, हम ये पॉइंट फाइंड कर लेंगे, फिर पॉइंट से हम इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड कर देंगे, ठीक है। देखो वो लाइन है, एक लाइन की इक्वेशन लिखना चाह रहे हैं जो इस पॉइंट से पास करे और इस लाइन के पैरेलल हो, ठीक है। वो कैसे आएगी, x माइनस 1 अपॉन, डायरेक्शन रेशियोज क्या है इस लाइन के, 1,1,1 है, तो इसके भी क्या हो जाएंगे 1, y प्लस 5 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू z माइनस 9 डिवाइड बाई 1, ठीक है। इसे इक्वेट टू लैम्डा कर देते हैं। कोई भी पॉइंट इस लाइन पे लाई करेगा उसके कोऑर्डिनेट्स किस टाइप के होंगे, x इक्वल टू लैम्डा प्लस 1, वाई इज इक्वल टू लैम्डा माइनस 5, z इक्वल टू लैम्डा प्लस 9, ठीक है। मान लो ये इसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये पॉइंट प्लेन पे भी लाई कर रहा है, तो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो वहां से लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा माइनस 5 प्लस लैम्डा प्लस 9 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, पॉइंट फाइंड हो जाएगा। तो ये लैम्डा से एक लैम्डा कैंसिल हो गया, सो लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा प्लस 5 लैम्डा प्लस 9 इज इक्वल टू 5, सो एक लैम्डा से एक लैम्डा कैंसिल हो गया, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 9 इज 15, 15 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 5, लैम्डा इक्वल टू माइनस 10, लैम्डा की वैल्यू माइनस 10 आ गई। अगर लैम्डा की वैल्यू माइनस 10 है तो ये पॉइंट क्या हो जाएंगे आपके पास, -10 प्लस 1 -9, -10 -15 हो गया, और थर्ड जो है आपके पास -1 आ गया। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, -9 -15 एंड -1। अब इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड कर लो, तो डिस्टेंस कैसे करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगा के, सो -9 -1 -10 स्क्वायर प्लस -15 प्लस 5 -10 स्क्वायर, थर्ड क्या हो गया -1 -9, ये भी आपके पास -10 स्क्वायर आएगा, तो 100 प्लस 100 प्लस 100, तो आपके पास हो गया 300, और इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो 10 रूट ऑफ 3 आ गया आंसर। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 75, ए पॉइंट मूव सो दैट द सम ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम द टू फिक्स पॉइंट इज कांस्टेंट, व्हाट इज द पाथ ट्रेस बाय द पॉइंट। तो ये डेफिनेशन ऑफ एलिप्स है, सो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखो एलिप्स में यही है कि दो फिक्स पॉइंट है आपके पास जिन्हें फोकस कहते हैं हम, उन दोनों पॉइंट से किसी भी पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इन दोनों डिस्टेंसेस का सम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसेंट्रिसिटी ऑफ द कर्व। तो कर्व आपके पास कैसी गिवन है, y माइनस 1 स्क्वायर x माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो y माइनस 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 9/2 लिख लें। यहाँ से क्या हो गया, x माइनस 3 स्क्वायर डिवाइड बाय 9/2 इज इक्वल टू 1, तो ये हाइपरबोला है, e स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर ई स्केयर माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे ए स्केयर भी किसके इक्वल है, 9/2 के इक्वल है, बी स्केयर भी 9/2 के इक्वल है, दोनों को पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 9/2 इज इक्वल टू 9/2 ई स्केयर माइनस 1, 9/2 से 9/2 कैंसिल होगा, तो 1 इज इक्वल टू ई स्केयर माइनस 1, ई स्केयर की वैल्यू 2 आ जाएगी आपके पास, ई की वैल्यू क्या आएगी, स्केयर रूट ऑफ 2। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोनिक रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। हमें ये एक सेकंड डिग्री इक्वेशन गिवन है, तो इसे हमें बताना है कि ये कर्व क्या रिप्रेजेंट कर रही है।
पैराबोला रिप्रेजेंट कर रही है, सर्कल रिप्रेजेंट कर रही है, हाइपरबोला कर रही है या फिर एलिप्स कर रही है। ठीक है, तो इससे पहले ना कुछ रिजल्ट्स देख लेते हैं। तो अगर आपके पास सेकंड डिग्री इक्वेशन गिवन हो, ठीक है, ए एक्स स्क्र प्लस 2h(xy) बी वाई स्क्र 2g(x) 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इसमें ना सबसे पहले हम डेल्टा कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो डेल्टा के लिए दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, डेल्टा इक्वल टू 0, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। उसके लिए फर्दर केसेस हैं। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन में क्या है, सिर्फ 4 ऑप्शंस हैं, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला। तो हम सेकंड केस पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो हमें डेल्टा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कॉफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल हो जाए, ठीक है, और मिक्स टर्म ना हो, एच की वैल्यू 0 हो, तो कर्व क्या आएगी, सर्कल आएगा। ठीक है, अगर एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी हो जाए तो पैराबोला आएगा, एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी हो जाए तो एलिप्स है, एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी हो जाए तो हाइपरबोला है। ठीक है, तो आपने ये कंडीशन याद रखनी है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पे हम देखें, ए की वैल्यू क्या गिवन है 3, बी की वैल्यू 5 है, एच की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, जो मिक्स टर्म है, मिक्स टर्म में क्या है 2xy है, -2xy, इसे कंपेयर करेंगे 2hxy से, तो h की वैल्यू क्या आएगी -1, h की वैल्यू -1 है। तो एच स्क्वायर और ए बी का हम देख लेते हैं कैसी रिलेशन है। एच स्क्वायर हो गया 1, ए बी की वैल्यू क्या आएगी 3 5 या 15, तो एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 हो गया। तो ये कैसी कर्व आएगी आपके पास, एलिप्स आएगी। ओके, so right option is D. Next question, in a triangle ABC, DE is parallel to BC and D on AB, E on AC, तो हमें ये बतानी है रेशियो BC ओवर DE की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले ट्राइंगल ड्रॉ कर रहे हैं। ट्राइंगल है ABC, ठीक है, BC के पैरेलल DE लाइन है, D कौन सा पॉइंट है, AB पे पॉइंट है D, और E पॉइंट कहाँ पे है, AC पे पॉइंट है। इन दोनों को ज्वाइन होने वाली लाइन है DE, किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है, और रेशो गिवन है AD ओवर DB। सो AD 2 एंड DB 3, तो यहाँ पे 2:3 की रेशो है। हमें किसकी रेशो फाइंड करनी है, BC ओवर DE की रेशो फाइंड करनी है, यानी कि इस स्मॉलर ट्राइंगल का बेस और इस लार्जर ट्राइंगल का बेस। तो हम क्या यूज करेंगे, सिमिलैरिटी का यूज करेंगे। ट्राइंगल जो है ADE, ये किसके पैरेलल है, सिमिलर है, ट्राइंगल ABC के सिमिलर है, बिकॉज एंगल जो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, एंगल D इक्वल टू एंगल B एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल E। ठीक है, देयरफॉर दे आर सिमिलर बाय AA सिमिलैरिटी, एंगल एंगल सिमिलैरिटी। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है सेम रेशियो में होंगी। ठीक है, तो इस स्मॉलर ट्राइंगल में जो ये वाली साइड है ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, BC के कॉरस्पॉन्डिंग है, तो हम लिखेंगे DE ओवर BC। ठीक है, इस स्मॉलर ट्राइंगल में ये जो साइड है AD, ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, ग्रेटर ट्राइंगल में AB के कॉरस्पॉन्डिंग है। ठीक है, तो ये स्मॉलर ट्राइंगल जो है इसमें साइड होगी AD, और जो ग्रेटर ट्राइंगल है इसमें साइड होगी AB। ठीक है, AD की वैल्यू 2 के इक्वल है, और AB की वैल्यू कहाँ से फाइंड करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे 2/5। तो आपके पास BC ओवर DE की रेशो क्या आ जाएगी, 5/2। तो 5/2 ऑप्शन सी में है, सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब कर रहे हैं, लेट D बी एनी पॉइंट ऑन साइड AB ऑफ ए ट्राइंगल ABC। देखो कोई भी ट्राइंगल गिवन है ABC, ABC, ठीक है, D ऐसा पॉइंट है, AC में कोई भी पॉइंट है, मान लो यहाँ पे है D पॉइंट। ठीक है, P Q एंड XY आर द मिड पॉइंट ऑफ AB। AB का मिड पॉइंट कौन सा है, P। BC का मिड पॉइंट कौन सा है, Q है, और AD का मिड पॉइंट कौन सा है, X, और DC का मिड पॉइंट Y है। ठीक है, तो हमें रेशो किसकी बतानी है, PX इस साइड PX, और ये QY की रेशो बतानी है क्या होगी। ठीक है, देखो यहाँ पे ना ट्राइंगल पे भी कोई कंडीशन नहीं है, ट्राइंगल कोई सी भी हो सकती है, और D पॉइंट पे भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, तो मैं सिंपलिसिटी के लिए इस ट्राइंगल को इक्वलेटर ट्राइंगल सपोज कर रहा हूँ, यानी कि तीनों साइड से इक्वल है, और D को
AC का मिड पॉइंट ही सपोज कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये पूरी फिगर आपके पास सिमेट्रिकल बन जाएगी, ये भी आपके पास 1:1 में होंगे, मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो D भी मिड पॉइंट है, तो ये बिल्कुल शेप सिमेट्रिकल हो जाएगी आपके पास, ठीक है। तो ये PX किसके इक्वल आ जाएगा, QY के इक्वल आ जाएगा, अगर मैं इसे ट्राइंगल को इक्विलेटरल ट्राइंगल सपोज कर लूँ ड्यू टू इट्स सिमेट्री, और D को मैंने मिड पॉइंट ही सपोज कर लिया, ठीक है। तो ये सारे के सारी डिस्टेंसेस इक्वल हो जाएंगे, तो वहां से PX भी किसके इक्वल आएगा, QY के इक्वल आएगा, दोनों की रेशो क्या हो जाएगी, 1:1। सो ऑप्शन नंबर ए। So question number 80, let triangle ABC is a right angle triangle at A and AD is perpendicular to BC, then ratio of BD upon DC क्या आएगी, ठीक है। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल कहाँ पे है, एंगल एट ए, ABC सपोज कर लिया, और A से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है BC पे अप टू पॉइंट D, ठीक है। तो हमें किसकी रेशो फाइंड करनी है, इस साइड और इस साइड की रेशो फाइंड करनी है। अगर इसमें ध्यान से देखें तो ये इस ट्राइंगल का बेस है, ये इस ट्राइंगल का बेस है, ठीक है। हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करना चाह रहे हैं यहाँ पे, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ADC। क्यों सिमिलर है, क्योंकि इनमें ना दो एंगल इक्वल हो जाएंगे। सपोज करो ये एंगल x है, तो ये एंगल क्या आएगा, 90 - x। अगर ये एंगल 90 - x हो गया तो ये एंगल x हो जाएगा, यहाँ से फिर ये एंगल क्या हो जाएगा आपके पास, 90 - x, ठीक है। तो दो एंगल सेम हो जाएंगे दोनों ट्राइंगल्स में, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगी। और सिमिलर ट्राइंगल्स का अगर हम एरिया फाइंड करें, उनकी रेशो किसके इक्वल आएगी, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्केयर की रेशो में आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम फाइंड कर रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, इट इज 1/2 ऑफ बेस, बेस क्या हो गया BD, और परपेंडिकुलर क्या है AD, ठीक है। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, ये हो जाएगा आपके पास 1/2 बेस हो गया DC इंटू परपेंडिकुलर AD है, ठीक है। तो यहाँ से हाफ हाफ कैंसिल हो गया, AD से AD कैंसिल हो गया, रेशो आपके पास आ गई BD ओवर DC, ठीक है। और सिमिलर ट्राइंगल्स में हमें पता है कि जो एरिया की रेशो है वो किस में है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्केयर की रेशो में। तो यहाँ पे अगर हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को देखें, ये हाइपोटेन्यूज हो गया इस ट्राइंगल का, ADB का हाइपोटेन्यूज हो गया AB, और यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या आएगा, AC आएगा, ठीक है। तो अगर हाइपोटेन्यूज को कंसीडर करें तो आपके पास AB अपॉन AC आएगी रेशो उनका स्केयर, ठीक है। वैसे भी ऑप्शंस में ना हमेशा AB था, तो इस वजह से मैंने हाइपोटेन्यूज को ही कंसीडर किया। सो ऑप्शन नंबर B is the correct answer. Question number 81, how many points are there on the curve at which the tangents are parallel to the line x minus 2y is equal to 0। तो हम क्या करना है कि इसमें पॉइंट बताने हैं इस कर्व पे कि जहाँ पे जो टेंजेंट्स हैं वो इस लाइन के पैरेलल हो जाएं। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें पता है किसी कर्व पे किसके इक्वल आएगी, डेरिवेटिव के इक्वल आएगी। तो इस कर्व का हम पहले डेरिवेटिव कर लेते हैं। सो एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इक्वल टू 1 गिवन है, इसका डेरिवेटिव 2x माइनस 4 2 जा 8y, y डैश इज इक्वल टू 0। सो y डैश इज इक्वल टू 2x डिवाइड बाई 8y। तो यहाँ से आपके पास आ गया x डिवाइड बाई 4y, ठीक है। और स्लोप ऑफ एंड जो टेंजेंट्स हैं वो किस लाइन के पैरेलल हैं, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। इस लाइन की स्लोप क्या आएगी आपके पास, स्लोप इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ x 1 डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y विच इज माइनस 2। सो स्लोप ऑफ दिस लाइन इज 1/2। टेंजेंट पैरेलल हैं तो उन दोनों की स्लोप इक्वल होगी, तो इसे हम इक्वेट कर देंगे 1/2 से। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 2y, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ ये आपके पास इक्वेशन आ गई, पॉइंट फाइंड करने के लिए इसे हम इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो आपके पास क्या आ गया, 4y स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इक्वल टू 1, 0 इज इक्वल टू 1 विच इज नॉट पॉसिबल। तो कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं फाइंड कर पा रहे, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर A 0। क्वेश्चन नंबर 82, इफ A 0,1 B क्या है 2,2 आर द 2 पॉइंट ऑन XY प्लेन, XY प्लेन पे 2 पॉइंट गिवन है। देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P ऑन x एक्सिस, x एक्सिस पे कोई पॉइंट P है सच दैट द लाइन सेगमेंट AP एंड BP, उस P को हमने A से भी ज्वाइन करना है, उस P को हमने B से भी ज्वाइन करना है। मेक द सेम एंगल विद द नॉर्मल टू द x एक्सिस एट द पॉइंट P, और P पॉइंट पे एक नॉर्मल भी ड्रॉ करना है, ठीक है। देखो सिचुएशन क्या है कि
सपोज करो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गए, ठीक है। इन पॉइंट्स को ड्रॉ कर रहे हैं। पहला पॉइंट्स क्या है 0,1, तो यहाँ कहीं हो जाएगा 0,1, ये पॉइंट हो गया ए। दूसरा पॉइंट क्या है 2,2, ये होगा 1, यहाँ पे होगा 2, ये होगा 2,2, यहाँ पे हो जाएगा पॉइंट 2,2, ठीक है। यहाँ पे ना कहीं पॉइंट पी है, ठीक है। पी और ए पी को ज्वाइन करना आपने और बी पी को ज्वाइन करना है, और पी पॉइंट पे ना हमने एक नॉर्मल ड्रॉ करना है। सपोज कर लो ये मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया पी पॉइंट पे, ठीक है। और ये सेम एंगल बना रहा है विद ए पी और बी पी। ये एंगल सपोज करो अल्फा है, तो ये एंगल भी किसके इक्वल है, अल्फा के इक्वल है। हमें ना ये एक्स पी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। पी एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, और हमें ना ये पॉइंट फाइंड करना है एक्स। देखो कैसे कर रहे हैं। अगर मैं इस ट्राइंगल को ज्वाइन कर दूं, ठीक है, अगर मैं इन ट्राइंगल्स को ज्वाइन कर दूं, इसे भी ज्वाइन कर देता हूं, ये एंगल किसके इक्वल आएगा 90 माइनस अल्फा के इक्वल आएगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे tan ऑफ 90 माइनस अल्फा फाइंड करें विच इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 2 यूनिट है, और बेस क्या हो जाएगा आपके पास 2 माइनस एक्स हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस इट इज 2 माइनस एक्स, ठीक है। सिमिलरली अगर इस ट्रायंगल में ये एंगल क्या बनेगा आपके पास फिर से 90 माइनस अल्फा के इक्वल आएगा। इस ट्रायंगल में ये एंगल क्या हो जाएगा आपके पास tan थीटा अगर फाइंड करें, सो दिस विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है आपके पास 1 यूनिट है, और बेस किसके इक्वल है x यूनिट की इक्वल है, तो यहां से हम x फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो 2x विल बी 2 माइनस एक्स, सो 3x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/3, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। Question number 83. The foot of perpendicular HK from the origin on 3x plus 4y is equal to 25 is straight line given है 3x plus 4y is equal to 25। ओरिजिन से ना परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं h, के, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ना, इस जो स्ट्रेट लाइन गिवन है इससे परपेंडिकुलर लाइन फाइंड कर लेंगे, ठीक है, और वो 0 0 से पास हो। तो इस लाइन से परपेंडिकुलर लाइन कैसे आएगी, कैसे लिखेंगे 4x माइनस 3y इज इक्वल टू के, ठीक है। और ये 0 0 से पास कर रही है, तो यहां से क्या हो जाएगा 0 माइनस 0 इज इक्वल टू के की वैल्यू क्या आ गई 0। तो जो लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है विच इज 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। यहाँ से ना x की वैल्यू फाइंड कर लें, तो 3y डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। इसे इस इक्वेशन में पुट कर दें तो आपके पास आएगा 3 इंटू 3 9y डिवाइड बाई 4 प्लस 4y इज इक्वल टू 25। इसे सॉल्व करेंगे आपके पास आएगा 9y प्लस 16y डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 25। सो यहाँ से हो गया 25y डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 25। तो y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 4। अगर y 4 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 3 के इक्वल आ जाएगी। तो आपके पास 3,4 ही पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। हमें इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लिया इस परपेंडिकुलर लाइन और इस लाइन का। सो क्वेश्चन नंबर 84, द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 4 डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इन द रेशो। आपके पास एक लाइन सेगमेंट गिवन है, पॉइंट्स है -1 1 5 एंड 7। कोई लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 4 इसे कट कर रही है, x प्लस वाई इक्वल टू 4। हमें बताना है कि किस रेशो में इसे डिवाइड कर रही है। सपोज कर लेंगे रेशो क्या है k/1 है, तो बाई सेक्शन फॉर्मूला इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे। सो 5 इंटू के 5k -1 डिवाइड बाई k प्लस 1 एंड 7k प्लस 1 डिवाइड बाई k प्लस 1। ये पॉइंट किस लाइन पे लाई कर रहा है x प्लस वाई इक्वल टू 4, तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो 5k -1 डिवाइड बाई k प्लस 1 प्लस 7k प्लस 1 डिवाइड बाई k प्लस 1 इज इक्वल टू 4। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, 5 प्लस 7 12k, 1 से 1 कैंसिल हो गया, डिवाइड बाई k प्लस 1 इज इक्वल टू 4। सो 12k इज इक्वल टू 4k प्लस 4। सो यहाँ से 8k इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, k की वैल्यू क्या आएगी 1/2।
सो k/1 इज 1/2। रेशो आपके पास पॉजिटिव आई है, देयरफॉर दिस लाइन डिवाइड इंटरनली, सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगर आपके पास ये साइन नेगेटिव आ जाए, सपोज यहाँ पे -1/2 आता, फिर आपने लिखना था सी ऑप्शन एक्सटर्नली। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 85, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द सर्कल्स इज। दो सर्कल गिवन है, उनमें से हमने शॉर्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। देखो, अगर आपके पास दो सर्कल्स गिवन है तो इनका शॉर्टर डिस्टेंस बेसिकली डिस्टेंस हो जाएगा जो सरफेस से सरफेस तक का डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले हम सेंटर्स का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। C1 C2 दो सर्कल के सेंटर्स हैं, तो C1 C2 फाइंड कर लेंगे। इसमें से हम माइनस कर देंगे दोनों सर्कल्स के रेडियस R1 और R2, तो जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो आपके पास क्या आ जाएगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो इसमें से माइनस करना है R1 और R2 माइनस करना है। सबसे पहले फर्स्ट सर्कल का जो सेंटर है वो क्या गिवन है? 1, -2। सेकंड सर्कल का जो सेंटर है इज -2 एंड 2। तो इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड करेंगे C1 C2। सो इट विल बी -3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर स्क्वायर रूट, तो 3 स्क्वायर 9 प्लस 16 स्क्वायर रूट, सो ये स्क्वायर रूट ऑफ 25 है। तो आपके पास डिस्टेंस क्या आ गया? 5। तो ये डिस्टेंस आ गया 5। अब 5 में से हमने क्या माइनस कर देना? दोनों सर्कल के रेडियस। फर्स्ट सर्कल का जो रेडियस है वो 1 के इक्वल गिवन है, सेकंड सर्कल का जो रेडियस है इट इज 2, सो 1 - 2। तो आपने 5 - 3 करना है, तो डिस्टेंस क्या आ गया आपके पास? 2। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 86, द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ एलिप्स 16x² + 25y² = 400 इज। तो हमें लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ फाइंड करनी है। लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ इज गिवन बाय 2b² डिवाइड बाय a। सबसे पहले इस एलिप्स को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो 16x² + 25y² = 400 है। तो बोथ साइड 400 से डिवाइड कर दें, तो x² 16x² डिवाइड बाय 400 + 25y² डिवाइड बाय 400 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो यहाँ से x² डिवाइड बाय ये 25 आएगा आपके पास, प्लस y² डिवाइड बाय 16 आ जाएगा इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपके पास a की वैल्यू क्या आ गई? 5 के इक्वल आ गई, और b की वैल्यू क्या आई? 4। सो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ आएगी 2 × 4² डिवाइड बाय 5। सो 4² 16, 16 2 जा 32 डिवाइड बाय 5। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। If x is a standard normal random variable, then the variance of x is। देखो, जो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, जो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल है, उसे हम n 0,1 से डिनोट करते हैं। यहाँ पे जो 0 है ये बेसिकली मीन के इक्वल है, और जो 1 गिवन है ये आपके पास वेरिएंस गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से मीन की वैल्यू 0 के इक्वल है और वेरिएंस की वैल्यू 1 के इक्वल है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 88, द एक्सपेक्टेशन ऑफ नंबर ऑन ए डाइस व्हेन थ्रोन इज। देखो, जब भी आप डाइस टॉस करोगे तो उसके लिए पॉसिबिलिटीज क्या हैं? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5 एंड 6। तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज क्या हैं? 1/6 एंड 1/6। ठीक है, एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल कैसे फाइंड करते हैं? इट इज अ सम ऑफ xi इंटू पी एक्स आईज, यानी कि हमने रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज को प्रोबेबिलिटीज से मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है। तो क्या करेंगे? 1 × 1/6, 2 × 1/6, 3 × 1/6, ठीक है। तो सब में से 1/6 कॉमन हो गया, तो 1 + 2 + 3 + 4, 5 एंड 6 को सॉल्व करना है। सो इट विल बी 1/6 इंटू, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, सम ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर विच इज 6 × 7 डिवाइड बाय 2। मैंने ये फॉर्मूला यूज़ किया है, n × n + 1 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ से ये 6 से 6 कैंसिल हो गया, 7 डिवाइड बाय 2 विच इज 3.5। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x एंड y आर इंडिपेंडेंट पॉइजन वेरिएबल्स, दो पॉइजन वेरिएबल्स गिवन है,
और x के लिए कंडीशन गिवन है, y के लिए कंडीशन गिवन है, हमें क्या फाइंड करना है, वेरिएंस ऑफ x माइनस 2y। ठीक है, सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, पैरामीटर फाइंड करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें पता है वेरिएंस ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो मीन है या फिर वेरिएंस है, ये सभी के सभी पैरामीटर्स के इक्वल हैं, विच इज m। ठीक है, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कैसे डिफाइन है रैंडम वेरिएबल x के लिए, e रेज टू पावर माइनस m m रेज टू पावर x डिवाइड बाय x फैक्टोरियल। सिमिलरली हम y के लिए डिफाइन कर देते हैं gy इक्वल टू e रेज टू पावर माइनस m m रेज टू पावर y डिवाइड बाय y फैक्टोरियल। ठीक है, तो हमें ना ये कंडीशन अप्लाई करनी है। ऐसे x के लिए क्या कंडीशन है, px इक्वल टू 1 इज इक्वल टू px इक्वल टू 2। तो यहाँ से हम m की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जब आप x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, e रेज टू पावर माइनस m m डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू e रेज टू पावर माइनस m m रेज टू पावर 2 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। e रेज टू पावर m से e रेज टू पावर m कैंसिल हो गया, एक m से एक m कैंसिल हो गया, तो m की वैल्यू यहाँ पे 2 कैंसिल आ जाएगी। ठीक है, m की वैल्यू आ गई यहाँ पे 2। y वेरिएबल के लिए कौन सी कंडीशन है, y इक्वल टू 2 इज इक्वल टू पी वाई इक्वल टू 3। इसे अप्लाई कर देंगे, e रेज टू पावर माइनस m m रेज टू पावर 2 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू e रेज टू पावर माइनस m m रेज टू पावर 3 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। ये कैंसिल हो जाएगा, e रेज टू पावर m e रेज टू पावर m से m स्क्वायर से m क्यूब भी कैंसिल हो गया। यहाँ पे बचा 1/2 इज इक्वल टू m डिवाइड बाय 6। सो m की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 3। ठीक है, तो हमने दोनों रैंडम वेरिएबल के लिए m की वैल्यू फाइंड कर ली, पैरामीटर की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम फाइंड करते हैं वेरिएंस ऑफ x माइनस 2y। वेरिएंस x माइनस 2y ये किसके इक्वल आएगा आपके पास, वेरिएंस में ना अगर आपके पास ऐसा कोई लीनियर एक्सप्रेशन गिवन है, वेरिएंस ऑफ ax प्लस b, सो इट विल बी a स्केयर ऑफ वेरिएंस ऑफ x। ठीक है, यानी कि हम स्केलर को हम स्केयर कर देंगे, जो आप ऐड करोगे कोई भी नंबर उसका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा वेरिएंस पे। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएंस क्या हो जाएगा, वेरिएंस ऑफ x प्लस माइनस 2 स्केयर वेरिएंस ऑफ y। ठीक है, वेरिएंस ऑफ x प्लस 4 टाइम्स वेरिएंस ऑफ y। वेरिएंस ऑफ x क्या आया था, पैरामीटर 2 प्लस 4 इंटू वेरिएंस ऑफ y क्या आया 3, तो 4 3 जा 12 प्लस 2 14। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 14। So question number 90, there are 4 hotels in a town. 3 men checks into the hotels in a day, then what is the probability that each checks into the different hotel? तो हमें probability find करनी है कि हर एक person different hotel में enter करे। ठीक है, देखो probability basically कैसे define है, number of favorable cases divide by total number of cases। तो सबसे पहले जो favorable cases हैं वो क्या है कि हर एक person different hotel में enter करे। 4 hotels हैं और 3 पर्सन है आपके पास। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन के लिए क्या पॉसिबिलिटी है, कितने वेज हैं एंटर होने के लिए, 4 चॉइसेस हैं। सेकंड के लिए कितनी चॉइसेस हैं, 3 चॉइसेस हैं। और थर्ड जो पर्सन है, लास्ट पर्सन है, उसके लिए कितनी चॉइसेस हैं, 2 चॉइसेस हैं। ये तो हो गए फेवरेबल केसेस। अब टोटल नंबर ऑफ केसेस कैसे फाइंड करेंगे, हर एक पर्सन के लिए 4 पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, तो चारों के लिए कितनी हो जाएंगी, 4 इंटू 4 इंटू 4। सो इसे डिवाइड कर देंगे, ये टोटल नंबर ऑफ केसेस हो गए। तो आपके पास 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 से 4 कैंसिल हो गया, सो 3 डिवाइड बाय 8 आ जाएगा आंसर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 91, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन इज इक्वल टू 0.83, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.6, देन इवेंट्स आर। तो हमें चेक करना है कि इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट है। ठीक है, दो इवेंट्स को इंडिपेंडेंट कब कहेंगे, जब उनकी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी आपके पास प्रोडक्ट ऑफ देयर प्रोबेबिलिटी आ जाए। ठीक है, इसे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम भी बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जब इंटरसेक्शन एम्प्टी आ जाए। तो सबसे पहले हम इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूजिंग एडिशन थ्योरम इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.3 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.6 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर यूनियन इज 0.83 है। इसे सिंपलीफाई कर लेंगे, 0.9 आ गया माइनस 0.83।
सो आपके पास आ गया 0.07। 0 नहीं आया, इस वजह से ये ऑप्शन तो गलत हो गया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, क्योंकि इसमें इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 आती है। ठीक है, क्या ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.3 है और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.6 है, सो ये हो गया 0.18। ठीक है, तो ये दोनों नॉट इक्वल आ गए, इस वजह से इंडिपेंडेंट भी नहीं है। सो आपके पास ऑप्शन आ गया ऑप्शन नंबर बी, सो दे आर डिपेंडेंट। सो क्वेश्चन नंबर 92, ए बैग कंटेन 3 वाइट बॉल्स। सो 3 वाइट है उसमें, 5 ब्लैक हैं, 1 बॉल इज ड्रॉन, उसमें से एक बॉल निकाली गई है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ वाइट बॉल? तो वाइट बॉल कितनी है? 3 है। टोटल बॉल्स कितनी थी? 8। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड रेंज। रेंज कहते हैं उसे, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज इक्वल टू 10, वेरिएंस इज इक्वल टू 9, देन द नंबर ऑफ ट्रायल इज। देखो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन एनपी के इक्वल है, ये 10 हो गया, और वेरिएंस एनपी क्यू के इक्वल है, ये आपके पास 9 आ गया। तो यहाँ से आप एनपी की वैल्यू पुट कर दें तो 10 इंटू क्यू इज इक्वल टू 9 आ जाएगा, तो क्यू की वैल्यू 9 डिवाइड बाई 10 आ गई। अगर क्यू की वैल्यू 9 डिवाइड बाई 10 है तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/10, क्योंकि दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होना चाहिए। तो आपके पास P भी आ गया, Q भी आ गया। अब हम क्या फाइंड कर सकते हैं? N फाइंड कर सकते हैं। इस इक्वेशन में आप P की वैल्यू पुट कर दें, N इंटू 1/10 इज इक्वल टू 10, सो N इज इक्वल टू 100। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 95, द वेरिएंस ऑफ दिस डाटा इज। तो हमें इस डाटा पॉइंट्स के लिए वेरिएंस फाइंड करना। तो वेरिएंस के लिए क्या फॉर्मूला है? सिग्मा स्केयर इक्वल टू सिग्मा xi स्केयर डिवाइड बाई n माइनस सिग्मा ऑफ xi डिवाइड बाई n होल स्केयर। ठीक है, अगर आप ये सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो कैलकुलेशन बहुत लेंथी हो जाएगी। तो इसके लिए ना हम एक प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं वेरिएंस के लिए। वेरिएंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, मींस कि अगर आप कोई फिक्स नंबर सभी डाटा पॉइंट्स में से माइनस कर देंगे तो वेरिएंस में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, वेरिएंस सेम रहेगा। ठीक है, तो जो डाटा पॉइंट्स गिवन है वो कौन से हैं? 1, 3, 5, 7 एंड 9। इन डाटा पॉइंट्स में से हम अगर 5 को माइनस कर दें तो यहाँ पे रहेगा 0, -2, -4, 2 एंड 4। ठीक है, ये सभी नंबर्स आप 2 से डिविजिबल हैं तो इसे 2 से भी डिवाइड कर दें, -2, -1, 0, 1 एंड 2। इसे मान लेते हैं हम xi सीरीज। ठीक है, इस सीरीज का सम क्या आ जाएगा आपके पास? 0 xi स्केयर, सो 4, 1, 0, 1 एंड 4। सो सम ऑफ xi स्केयर इज 10। ठीक है, तो वेरिएंस आपके पास क्या आएगा? सिग्मा स्केयर इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 5 नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स माइनस ये वैल्यू आपके पास क्या आ गई? 0 आ गई। ठीक है, तो सिग्मा स्केयर की वैल्यू आ गई आपके पास 2। ठीक है, बट आपने इस सीरीज को 2 से डिवाइड कर दिया था यहाँ पे। ठीक है, बट जो वेरिएंस है वो इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल नहीं है। अगर आपने किसी फिक्स नंबर से डिवाइड किया है उसे बाद में आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा वेरिएंस के साथ। यहाँ पे वेरिएंस के स्केयर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम। यहाँ पे हम इस नंबर के स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 स्केयर इज 4, 4 2 जा 8, सो करेक्ट आंसर इज 8। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 96, द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 100 आइटम्स आर 50 एंड 5 and 150 items are 40 and 6 respectively. What is the combined standard deviation of 250 items? देखो इसके लिए सबसे पहले ना हम कंबाइंड मीन फाइंड करेंगे, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। सबसे जो फर्स्ट केस है उसमें n1 की वैल्यू क्या गिवन है? 100 गिवन है। xi जो मीन है इस सीरीज का वो आपके पास गिवन है 50 और स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा 1 गिवन है 5। सेकंड है उसके लिए n2 की वैल्यू क्या गिवन है? 150। x2 की वैल्यू क्या गिवन है आपके पास? x2 की वैल्यू क्या गिवन है? 40 एंड सिग्मा 2 की वैल्यू क्या गिवन है? 6 के इक्वल गिवन है। ठीक है, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन के लिए क्या फॉर्मूला है? x बार इज इक्वल टू n1 x1 बार n2 x2 बार डिवाइड बाय n1 प्लस n2। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 100 इंटू x1 बार इज 50 प्लस n2 इज 150
इंटू 40 डिवाइड बाय, ये आ गया आपके पास 100 प्लस 150, तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे ना आपके पास 44 आएगा आंसर। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे D1 की वैल्यू। D1 क्या होएगा, x बार माइनस x1 बार, यानी कि जो मीन आया है कंबाइंड मीन और जो फर्स्ट सीरीज का मीन था उनका डिफरेंस। तो ये आपके पास आ गया, आपके पास ये आ गया 6 के इक्वल, माइनस 6 के इक्वल। D2 कैसे फाइंड करेंगे, x बार माइनस x2 बार, तो इसकी वैल्यू आएगी आपके पास 44 माइनस 40, तो आपके पास प्लस 4 आ जाएगा। ठीक है, D1 D2 आ गए। फिर इसके बाद हम फाइंड करेंगे कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है, n1 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर, n2 सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर डिवाइड बाय n1 प्लस n2। देखो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, बहुत सारी कैलकुलेशन है, तो आपके पास सिग्मा की वैल्यू आएगी 7.45। सॉल्व करेंगे हम, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। सो ये क्वेश्चन स्किप करने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 97, ए रिसर्चर सेलेक्ट ए प्रोबेबिलिटी सैंपल ऑफ 100 आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन में से 100 का सैंपल उठाया, तो इसे क्या बोलेंगे, क्लस्टर सैंपलिंग बोलेंगे, रैंडम सैंपलिंग बोलेंगे, सिस्टमेटिक सैंपलिंग बोलेंगे या सर्टिफाइड सैंपलिंग बोलेंगे। ठीक है, कोई भी देखो रूल नहीं फॉलो किया, कोई पैटर्न नहीं फॉलो किया, हमने 100% पिक कर लिए टोटल पॉपुलेशन में से। ठीक है, तो ये इसे बोलेंगे रैंडम सैंपलिंग। सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन भी डिस्कस कर लेते हैं। क्लस्टर सैंपलिंग का मतलब क्या है ना, आपने क्लस्टर बना दिए हैं, जैसे ना कोई एक स्टेट है, उसमें डिफरेंट टाइप की लोकेलिटीज हैं, सिटी हो गया, रूरल एरिया हो गया, सेमी रूरल एरिया हो गया, सेमी अर्बन एरिया हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग हमने क्लस्टर बना दिए, तो वहां से अपने सैंपल उठाए हैं, तो इसे बोलते हैं क्लस्टर सैंपलिंग। तो सिस्टमेटिक सैंपलिंग में क्या है कि आपने ना जैसे पर्सन है उन्हें एक रो में स्टैंड करवा दिया, ठीक है, और वहां से ना एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। जैसे मैं कहूँ कि हर थर्ड पर्सन आपने पिक करना है, तो पहले थर्ड पर्सन पिक हो जाएगा, फिर 6th पर्सन पिक हो जाएगा, फिर आपने 9th पर्सन को पिक कर लेना, फिर 11th पर्सन को पिक कर लेना। मतलब एक आपने रूल बना दिया जिसके अकॉर्डिंग आपने पिक करने एलिमेंट्स या फिर जो पर्सन है उन्हें पिक करना है, तो इसे बोलते हैं सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। सर्टिफाइड सैम्पलिंग में क्या है ना, जैसे किसी पर्सन की पर्टिकुलर फीचर के अकॉर्डिंग हम पिक करेंगे। जैसे एज ग्रुप हो गया, आपके पास यंग स्टूडेंट्स हैं, अडल्ट्स हैं, फिर आपके पास ओल्ड एज पर्सन हैं, चाइल्ड्स हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम वहां से सैंपल उठाएंगे, तो इसे बोलते हैं सर्टिफाइड सैम्पलिंग। किसी एक पर्टिकुलर फीचर के अकॉर्डिंग हम सैंपल्स को पिक करें। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया सारा। सो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस इज 9, द मीन ऑफ द लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन इज। तो यहाँ से ना अपने एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेनी है और वहां से फिर 3 जो लास्ट एलिमेंट्स हैं उनका मीन फाइंड करना है। तो मीन क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे हम सभी एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। एक्स कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 4 5 टाइम्स आ रहा है, तो 5x प्लस 3 प्लस 5 8 हो गया, 8 प्लस 7 15, 15 प्लस 10 25 डिवाइड बाय कितनी ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 इक्वल टू 9। तो यहाँ से आपके पास 5x इक्वल टू 9 5 या 45, 45 माइनस 25, सो यहाँ से आपके पास आ गया 4 माइनस 2, सो 5x, x की वैल्यू क्या आ गई, 4 के इक्वल आ गई। ठीक है, अब 4 के अकॉर्डिंग हम लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन का मीन फाइंड कर लेंगे। लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन क्या आएंगी, 9 11 एंड 14 डिवाइड बाय 3 करना है। तो 9 प्लस ये हो गया आपके पास 20 प्लस 14 डिवाइड बाय 3, सो ये हो गया आपके पास 34 डिवाइड बाय 3। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस डाटा। ठीक है, फिर से वही हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए क्या फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज गिवन बाय स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स आई स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस सिग्मा एक्स आई डिवाइड बाय एन होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसके लिए भी फिर से हम वही टेबल बनाएंगे। एलिमेंट्स क्या है, 9 है, 16 है, 23 है, 30 है, 37 है, 44 है, 51 है। सबसे पहले एक एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे जिसको सब में से माइनस कर देंगे। 30 सेलेक्ट कर लिया, 0 हो गया, यहाँ पे -7 आएगा, ये हो गया आपके पास -14,
और ये आएगा -21। सिमिलरली यहाँ पे -7 + 7 आएगा 14, 21। ये सभी नंबर 7 से डिविजिबल हैं, 7 से डिवाइड कर दें। 0, -1, -2, -3, यहाँ पे हो गया 1, 2 एंड 3। इसे मान लेंगे xi सीरीज, इसका सम आपके पास आएगा 0। फिर हम करेंगे xi स्केयर करेंगे 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9, सबको ऐड कर दें। सो 9 + 1 10 हो गया, 10 + 1 14, 14 + 14 इज 28। ठीक है, तो सिग्मा की वैल्यू आएगी 28 डिवाइड बाई कितनी ऑब्जर्वेशन थी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 ऑब्जर्वेशन थी, 7 से डिवाइड कर दें। ठीक है, माइनस ये एलिमेंट 0 है, सो 0 स्केयर। सिग्मा की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 4, स्केयर रूट ऑफ 4 इज 2। ठीक है, अब आपने यहाँ पे 7 से डिवाइड किया था ना इस सीरीज को, तो बाद में आपको 7 से मल्टीप्लाई भी करना है। ठीक है, 7 2 या 14, तो सिग्मा की वैल्यू क्या आ गई, 14। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन, एलपीपी से स्टार्ट किया था, एलपीपी से एंड कर रहे हैं। सो लास्ट क्वेश्चन है, तो इसे ड्रॉ कर लेंगे हम। x + y = 1/2, ये आ गई आपके पास 1/2, 0, 0, 1/2। ठीक है, 3 ही कॉर्नर पॉइंट्स आए हैं और हमें चेक करना है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आएगी। 2x + 3y है ना, तो पहला पॉइंट पुट करोगे 0, 0, तो वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 0, 0 पे z की वैल्यू क्या आएगी, 0। दूसरा पॉइंट पुट करेंगे हम 1/2 एंड 0, 1/2 पुट करोगे आपके पास z की वैल्यू 1 के इक्वल आ जाएगी। थर्ड पॉइंट है 0 एंड 1/2 पुट करेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी आपके पास 3/2। सो 3/2 इन सब में से ग्रेटर है, सो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे आपके पास मैक्सिमम वैल्यू आएगी। सो थैंक यू वेरी मच।